questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. So, Charlotte, your tasks today are in the bakery section, on the sushi counter, and on the meat and fish counters. The first job is to check sell-by dates on the bread and cakes. If any of the dates are today's, put a new price label on the packaging. What if any of the labels are yesterday's dates or older? Do I throw those items away? Yes, but that shouldn't happen. We check the stock every day. When something needs a new price label, put a yellow one on the package next to the original price. Okay. After that, you'll go to the sushi takeaway counter. Will I be preparing boxes of food? For today, you'll just be helping the staff. Yes, of course. You'll see lots of flat cardboard boxes at one end of the counter. Beneath those is where we keep the plastic boxes. We run out of those really quickly, so you should bring more from the storeroom. Is that my only task on the sushi counter? No, you also need to clean the area where they prepare the dishes. There are cloths and bottles of spray by the sink. Oh, and please make sure you clean that too. Sure. That's important, isn't it? Absolutely, but you mustn't wash up knives. You have to do some training before you're allowed to touch sharp objects. What should I do if there are any? Ask someone to put them in the dishwasher. Okay, thanks. I don't want to get anything wrong. Don't worry, you'll be fine. And I'll be around to help. Right. Finally, the meat and fish counters. You need to clean the area where staff serve customers, including wiping the weighing scales. Okay. Anything else? The fish is laid on ice, but when that starts to melt, you'll need to get more from the cold room. I know the staff on the food counters wear a hat. Will that be the same for me? You won't be serving customers directly, so no. But make sure you put on thermal gloves when you take anything out of the cold room. The temperature's low enough in there to get frostbite from touching things. Understood. That is the end of part 1. ये सबको अपने आंसर्स मिल गए या फिर ऑडियो को हम रिवाइंड करें? प्राइस प्लास्टिक आइस ग्लव्स. जी चलिए अब अपने आंसर्स देखते हैं. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. ओके, चलिए अब अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं. जी हमारे आंसर सारे ठीक हैं. और बाकी अब चैट बॉक्स में देखते हैं. प्राइस, जी प्राइस कैसे? वहाँ पर उसने बताया हमें कि प्राइस के लेबल्स लगाने हैं. ठीक है, लेकिन बाद में उसने बता दिया कि येलो वन से हमने रिप्लेस कर देने हैं अगर कोई इस तरह का हो. जैसे समथिंग सॉरी needs a new price label but a yellow one on the package. और एक मिनट, नेक्स्ट टू द ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस के साथ उसने कहा कि आपने येलो लेबल लगा देना है, तो इसका आंसर येलो बनेगा. और इसके अलावा जी काफ़ी ने प्राइस ही कहा है, प्राइस लेबल्स. जी कोई इसको जस्टिफाई करेगा कि आपने प्लास्टिक सॉरी प्राइस क्यों लिखा येलो की जगह? चलिए किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. जी प्लीज़ रिस्पॉन्ड किया करें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है. इस तरह का एक और क्वेश्चन हम करें या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. बेशक आप चैट बॉक्स के अंदर ही रिस्पॉन्ड कर दिया करें अगर आप अपना माइक वगैरह नहीं खोल सकते. एनीवेज
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें ठीक है। जी एक और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी वर्ड लिमिट देख ली। ठीक है, वही स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे। अपने कॉलम्स की हेडिंग देख ली। ठीक है, ये शॉपिंग के बारे में है। मेन टॉपिक यहाँ पर शॉपिंग है। फिश मार्केट की बात होगी, ऑर्गेनिक सोप की बात होगी और बेकरी की बात होगी। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की सेंटेंसेस के अंदर से हाईलाइटिंग शुरू करते हैं। A dozen prawns, a handful of dash। ये कोई सीवीड की टाइप है यहाँ पर। ठीक है, हैंडफुल उसने कहा है कि आपने एक मुट्ठी भर लेना है। और ऑर्गेनिक शॉप है जिसके अंदर बीन्स होते हैं। एंड अ डैश बीन्स। एंड डिजर्ट के लिए उसने कोई चूज करनी है। बीन्स लेने उसने डिजर्ट के लिए, और एक और चीज लेगी वो या लेगा। उसके बाद स्पाइसेस आ जाती हैं, स्पाइसेस एंड, ठीक है, और स्पाइसेस और कोई और चीज़ लेगा, ये अदर आइडियाज़ हैं। ठीक है, मेनली वो इसलिए जा रही है, लेकिन जा रहा है, जा रही है, लेकिन बाद में वो अदर एडिशनल ये वाली चीज़ें भी ले लेगी। उसने ब्राउन लूफ लेनी है, और लॉफ ऑफ ब्रेड, और अ टार्ट, अ डैश टार्ट। ठीक है, तो टार्ट किस चीज़ का लेगा, तो वो देखते हैं, ऑडियो स्टार्ट करते हैं। Test 3. So, what do you need to get at the fish market? The salmon is always very good, and the shellfish. I'm going to make a curry, I think, and I need about 12 prawns for that. They'll have plenty of those. Okay. Have you ever tried samphire? No, what's that? It's a type of seaweed. Oh, I just ask for a handful, and you fry it in butter. It's delicious. oh, I might try that. How do you spell it? It's SAMPHIRE. Great. It's always good to try something different. Yeah. I'll see what beans they have in the organic shop, and I think I'll get something for dessert there. How about a mango? I'm not sure. They're not always ripe. I'd prefer a melon. It's bigger too. Good idea. The owner also sells a lot of spices there that you can put in a curry, and things like coconut. Oh, that's very helpful. I'll have a look. No problem. I know bread doesn't really go with curry, but I always like to have some in case. As I said, all the bread is homemade, and there's lots of variety. I like the brown bread myself. Sounds good. They sell other things there too. Like cakes? I love chocolate cake. Well, not that. But they have a whole range of tarts, and the best are the strawberry ones. Perfect. Hopefully, I won't even have to go to the supermarket. That is the end of part 1. जी सबको अपने आंसर्स मिल गए। ओके, चलिए अब अपने आंसर चेक करते हैं। ये हमारे आंसर ये सारे ठीक हैं। और यहाँ पर इस 2 जगह डिस्ट्रैक्टर्स आए थे हमारे। एक जगह उसने मेलन का, ठीक है, उसने सजेशन दी थी कि आप मैंगो ले सकते हैं ओल्ड मैन ने, और जो वुमेन थी उसने कहा नहीं मैं मेलन को प्रेफर करती हूँ। तो दोनों ने मेलन के ऊपर एग्री किया था। और फोर्थ वाला हमारा है स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पर भी एक डिस्ट्रैक्टर आया था। जो ओल्ड मैन था, नहीं नहीं, वुमेन कह रही थी कि उसको चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर ओल्ड मैन ने कहा कि नहीं वहाँ पर चॉकलेट केक तो नहीं होता, लेकिन मैं टार्ट्स आपको मिल जाएंगे, और स्ट्रॉबेरी वाला सबसे फेमस है वहाँ का। तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आएगा।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। मैम क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। चलें ठीक है। आगे अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। पहले हम अपने जो दो टाइप्स हैं आपसे मैंने पहले डिस्कस किया, लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटजी है ना वो स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है, सिंगल चॉइस के अंदर क्या है ये आप बेशक नोट डाउन कर लें कि हमें क्या करना है कि लिसनिंग के दौरान सिंगल में और डबल चॉइस में। ठीक है, सिंगल में क्या है, एक आंसर हमने चूज करना होता है ए बी सी में से। यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, चार नहीं होते। ठीक है, और इसके अंदर से एक आंसर करेक्ट होगा तो हमें एक मार्क्स मिल जाएगा। अब हमने इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या ये हमारे पास ये टू आंसर्स वाला है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले सिंगल वाले देख लेते हैं। इसके अंदर हमें सिर्फ एक आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, कि आप लिख जरूर लें कि एलिमिनेट करेंगे हम डिस्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, और एक मेन बात ये है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करें। ठीक है, और जो डबल चॉइस होते हैं उसके अंदर हमने क्या करना है उसके अंदर हमें दो आंसर्स ऑप्शंस को चूज करना होगा। ए टू ई होते हैं हमारे पास ऑप्शंस, यानी कि पांच ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर से हम दो सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं मैम बारी। इसमें क्वेश्चन है मेरा कि अगर हमारे स्पेलिंग ना ठीक हो किसी जी, आंसर में तो उसका लाइक क्या स्कोर होता है, लाइक उसका स्कोर होता है या वो जीरो कंसीडर होता है? वो जीरो ही कंसीडर होता है। बेशक आपके सिंगुलर या प्लूरल की गलती हो, या स्पेलिंग की गलती हो, या आपने कोई उसका सिनोनिम यूज कर लिया हो, तो फिर भी आपका जीरो ही मार्क्स आएगा। ठीक है। जी, और जी हम यहाँ पर थे टू आंसर्स वाले में मल्टीपल एमसीक्यूज के। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने सारी डिटेल्स को सुनना है। उसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल चॉइस में वो तीनों ऑप्शंस को डिस्कस नहीं भी कर सकता। ठीक है, लेकिन डबल चॉइस वाले में वो पांच ऑप्शंस होंगे तो वो पांचों को डिस्कस करेगा, और वो हर एक के अंदर आपको हिंट दे देगा कि ये वाला ऑप्शन ठीक है या फिर दूसरे वाला। और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी यही वाले क्वेश्चन टाइप होती हैं। और इसके अलावा हमने डिस्ट्रैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मसला डिस्ट्रैक्शन का ही आता है। वो छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर देता है, लाइक जैसे उसने कहा आई डोंट प्रेफर। ठीक है, जैसे हमने मेलन और मैंगो का सुना कि उसने मैंगो का जिक्र तो जरूर किया था, लेकिन उसने बाद में अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेकंड पर्सन था वो उससे एग्री नहीं कर रहा था, तो उसने उसको बता दिया कि नहीं मैं इसको प्रेफर करता हूँ, और फिर जो पहले वाला पर्सन था उसने भी उसके साथ टोटली एग्री कर लिया। तो इस तरह से हमारा आंसर मेलन बना, ना कि मैंगो। उसके बाद हमने हाफ क्रेडिट नहीं देना, मतलब कि ये कि इसके अंदर एक ये बहुत मतलब कह लें एक्सेप्शनल केस होता है कि यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शंस ठीक चूज करने होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, तो उसके हमें जैसे पांच ऑप्शंस हैं, अगर हम एक ऑप्शन सही चूज कर लेते हैं और दूसरा गलत चूज कर लेते हैं तो हमारा जीरो मार्क्स होगा टोटल। हमें दोनों जो ऑप्शंस है वो करेक्ट चूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर क्या दो ऑप्शंस को चूज करना है, दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे और दोनों सही होंगे, तो फिर ही हमें मार्क्स मिलेंगे। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे। मैम ये जो फिल्टर लगाते हैं आप वन चॉइस टू चॉइस वाला, ये हमारा वन चॉइस ही आती है हमेशा?
हाँ जी, फिर वो आपके सारे वन चॉइस वाले ही आ जाते हैं। और हमने करने भी वन चॉइस वाले ही हैं। जी, अभी हम वन चॉइस वाले कर रहे हैं। हमने टू चॉइस वाला भी, जैसे हमने दो टाइप्स पढ़ी है ना एमसीक्यूज की। एक है सिंगल चॉइस वाली और एक मल्टीपल चॉइस वाली। तो वो यही है। ओके। जी। जी, अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये वन चॉइस ऊपर वो हेडिंग बनी होती है कि ये वन चॉइस वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पहले हम एक टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो एमसीक्यूज की दो फॉर्मेट्स है ना, सिंगल चॉइस और डबल चॉइस वाली। ये अब हम सिंगल चॉइस वाला कर रहे हैं। आप इसमें से कोई भी चूज कर लें, मैंने फर्स्ट वाला किया है। इसके अंदर हमारे पास हैं 6 क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने क्या कहा है। चूज द करेक्ट लेटर ए, बी और सी। एक लेटर हमने चूज करना है इसमें से। ठीक है। उसके बाद हमने जो एक स्ट्रेटेजी ये होती है इसके अंदर कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ें। ठीक है, उसके आंसर्स की तरफ ना जाएं अभी, ये जब हाईलाइटिंग करते वक्त। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे के पूरे ऑप्शंस भी पढ़ें और उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ें, क्योंकि उसने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 सेकेंड दे देगा या 20 सेकेंड दे देगा। तो उसमें मुश्किल से आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी जाएंगी। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उसके अंदर से अपने हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स को। ये पहली स्टेटमेंट है, व्हाट डज अ वुमन से अबाउट यूजिंग लैपटॉप्स टू टीच राइटिंग टू चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? ये एक कह लें कि फिजिकल, जो हमारे मसल्स होते हैं उसकी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से फिजिकल मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर उसने क्या डिसलेक्सिया और स्टूडेंट की बात की है और उनको क्या करना है, लैपटॉप्स के यूज़ के बारे में। ठीक है, और उनको राइटिंग उसने सिखानी है, तो उसके बारे में वो कह रही है कि और एक और बात, वुमेन क्या कह रही है। क्या पता ये डबल साइडेड कन्वर्सेशन हो, तो उसके अंदर दो बंदों के ओपिनियन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ वुमेन का देखने कि वुमेन का ओपिनियन क्या था लैपटॉप्स के बारे में, कि वो कैसे उन डिसेबल्ड चिल्ड्रन को वो टीचिंग, सॉरी, राइटिंग सिखाएगी। दूसरे में क्या आ जाता है, व्हेन डिस्कसिंग वेदर टू टीच कर्सिव और प्रिंटिंग राइटिंग द वुमेन थिंक्स दैट। अब यहाँ पर क्या है, उसने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, उसने कह लें कि डिबेट होगी दो चीज़ों के दरमियान, और उसमें से वुमेन क्या सोचती है, यानी कि वो किस चीज़ पे एग्री करती है, या फिर उसको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है। ये चीज़ हमने अब इसके अंदर देखी। और थर्ड में क्या, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। अब ये देखें, अब ये स्टूडेंट्स की बात आ गई। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है, वुमेन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे। व्हाट इम्पैक्ट डज पुअर हैंड राइटिंग हैव ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस। ठीक है, पुअर हैंड राइटिंग की बात होगी और एग्जाम की परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है पुअर हैंड राइटिंग का एग्जाम परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद, व्हाट प्रिडिक्शन डज द मैन मेक अबाउट द फ्यूचर ऑफ हैंड राइटिंग। अब यहाँ पर मैन ने क्या प्रिडिक्शन की थी। ठीक है, यहाँ पर प्रिडिक्शन क्या की थी उस मैन ने फ्यूचर ऑफ हैंड राइटिंग के बारे में। ठीक है, और लास्ट पे अ वुमेन इज कंसर्न। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से वुमेन का ओपिनियन हमने देखना है, दैट रिलाइंग ऑन डिजिटल डिवाइसेस हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू। ठीक है, उसके लिए क्या डिफिकल्ट बना दिया, डिफिकल्ट फॉर हर टू, और डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर रिलाई करना उसके लिए क्या मुश्किल बना दिया। और लास्ट पर हम देखेंगे, हाउ डू द स्टूडेंट्स फील। स्टूडेंट्स कैसे फील करते हैं अबाउट देयर ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग के बारे में वो कैसा फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने हाईलाइट कर लिए। तो इस तरह से जब हम हमारी ऑडियो स्टार्ट चल रही होगी,
तो हमें पूरी पूरी स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने एक ही दफा गौर से पढ़ ली होती है और हाईलाइट कर लिए होते हैं, जिससे हमें टिप्स मिल जाती हैं कि इस हमने ये चीजें आंसर के अंदर इस चीजों के आंसर्स हमने देखने हैं। जी हम ऑडियो Part स्टार्ट करते हैं। 3. You will hear 2 education students discussing an assignment on teaching handwriting to children. First, you have some time to look at questions 21 to 24. For some children, it might be better to teach them to write on a laptop rather than by hand. Like children with dyslexia, they often really struggle with handwriting and some just give up. Yeah, it's not as जी यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना भूल गई। जो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं ना, इसके अंदर हमने ये हाईलाइटिंग स्टेटमेंट्स की तो कर ली, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शंस का क्या? तो ऑप्शंस की जो हमने हाईलाइटिंग करनी है ना, वो हम ऑडियो के दौरान करें। ठीक है, ये एक टिप है, आप समझ लें। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, ये ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, अब जैसे ये ऑडियो स्टार्ट हो गई है, हमें पता है कि वो बात करना शुरू हो गए हैं, हमारे आंसर तक पहुंच गए हैं, या फिर उस तरह से हम क्या करते हैं, फटाफट से अपने स्किमिंग कर लेते हैं, यानी कि ओवरव्यू ले लेते हैं अपने आंसर्स का, कि यहाँ पर लेक ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लुएंट है, ठीक है, और फ्लुएंसी का आ जाएगा, और रिएक्ट मोर पॉजिटिवली, ठीक है, अगर वो मिस्टेक करी। तो ये हमने ऑडियो के दौरान ही सारी स्कीमिंग की है। अभी मैंने आपको वैसे ही रोक कर करके दिखाई है। जब अगला सेकंड क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ साथ भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे करें। For some children, it might be better to teach them to write on a laptop rather than by hand. Like children with dyslexia, they often really struggle with handwriting and some just give up. Yeah, it's not as frustrating for them if they get things wrong. On a keyboard, they can be more willing to have a go. But I read that developing fluency isn't any faster. That's right. Did you read that article on the benefits of teaching print rather than cursive handwriting, where the letters are joined up? Yes. Well, in the past, यहाँ पर किसी को अपना आंसर मिला? यहाँ पर उसने ये बात कर दी थी कि उसने क्विकली की जगह उसने कहा ये काफी स्लो होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर उसने बाद में कहा कि वो शुरू में उसने ये वाले ऑप्शन का जिक्र कर दिया था कि वो ज्यादा दे आर गुड टू गो, ठीक है, लेकिन उसने ये वाला ऑप्शन किया, और लेकिन ये वाले ऑप्शन को उसने टच भी नहीं किया। ठीक है, यही बात आ जाती है सिंगल चॉइस के अंदर, कि वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ऑप्शंस को डिस्कस करे। ठीक है, लेकिन जो डबल चॉइस होते हैं उसके अंदर वो जरूर सारे के सारे जो आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनको डिस्कस कर रहा होता है। एक मिनट में इसको रिमूव कर लूं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर उसने कर्सिव व प्रिंटिंग का जिक्र कर दिया था, यानी कि जब वो इस बात पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमें लगा था, मुझे भी पर्सनली लगा था कि अब वो जो है ना फर्स्ट वाला ऑप्शन भी वो उसको भी डिस्कस करेगा, क्योंकि हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं उस ऑडियो के ऊपर। ठीक है, तो अब हमने जैसे हाईलाइट किया हुआ था अगला हमारा जो क्वेश्चन था, तो जब उसने कर्सिव व प्रिंटिंग का जिक्र किया तो हमें पता चल गया कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये एक बेनिफिट होता है हाईलाइटिंग का। जी अब स्टार्ट करते हैं, और अब हम ऑप्शंस को साथ साथ करेंगे, सॉरी, हाईलाइट साथ साथ करेंगे ऑप्शंस को, और पढ़ेंगे भी साथ साथ। अभी तक हमने ऑप्शंस को पढ़ा नहीं है। The benefits of teaching print rather than cursive handwriting, where the letters are joined up. yes. Well, in the past, cursive writing was certainly considered more stylish and educated, but not anymore. Teachers' attitudes have changed because it's been proved that cursive is more difficult to learn.
especially for children with learning difficulties who find joining up letters really challenging. I agree. I was always worried that my poor handwriting affected my exam results. And now अब यहाँ पर पुअर हैंडराइटिंग की तरफ वो चल भी गया। मुझे अपना आंसर मैंने वो स्किप कर दिया, मुझे नहीं पता चला क्योंकि यहाँ तक बात हमने सुनी कि टीचर्स उसको प्रेफर नहीं करती। ठीक है, ट्रेडिशनल को कर्सिव जो है वो ट्रेडिशनल है। सॉरी, दोबारा से सुन लेते हैं। Children with learning difficulties who find joining up letters really challenging, difficult to learn, especially for children with learning difficulty, stylish and educated. teaching print rather than cursive handwriting, where the letters are joined up. Yes. Well, in the past, cursive writing was certainly considered more stylish and educated, but not anymore. Teachers' attitudes have changed because it's been proved that cursive is more difficult to learn, especially for children with learning difficulties who find joining up letters really challenging. I agree. I was always worried that my poor handwriting affected my exam results. जी, यहाँ पर अब वो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव भी कर गया है। यहाँ पर भी उसने सिर्फ दो ऑप्शंस को डिस्कस किया। एक उसने ये टीचर्स वाले को किया था, ठीक है, वो हमारा गलत था। ठीक है, उसने कहा कि वो प्रेफर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लिखा है वो प्रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि उसने कहा कि वो जो सर्टेन ग्रुप का वर्ड उसने यूज नहीं किया, लेकिन इसको उसने पैराफ्रेज कर दिया कि कुछ स्टूडेंट जिनको डिफिकल्टी होती है उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। और उसने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमने साथ साथ की थी हाईलाइटिंग ऑप्शंस की, तो वो हमारा टाइम सेविंग था। ये एक टाइम मैनेज करने की एक टिप थी जो कि आपको बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। And now research shows that I was right to worry. I'm sure a lot of students think it's unfair that they're being judged on their handwriting, not just their knowledge. Mark, Right to worry. Worried that my more difficult to learn, especially for children with learning difficulties who find joining up letters really challenging. I agree. I was always worried that my poor handwriting affected my exam results. And now research shows that I was right to worry. I'm sure a lot of students think it's unfair that they're being judged on their handwriting, not just their knowledge. Marks are definitely affected if examiners can't read the script. That's why it's always been so important to teach children to write legibly. Do you think the role of handwriting will change in the future? I can't see that changing much. Touch typing still isn't taught in most schools, which is a shame. But maybe that won't be necessary in the future because people will also be able to write by hand on digital devices. Anyway, teachers understand the value of handwriting. It's a basic life skill. True. However, the fact is that people are writing by hand less and less and relying on digital devices. That does cause some problems. You mean like note-taking? There are lots of apps for that. And for reading historical documents, apparently. But my mum is shocked by my awful spelling and the fact that my punctuation is really inconsistent. I think you can put that down to lack of practice. I expect so. Personally, I miss writing by hand. I hardly ever write anything now. I remember my grandparents had such beautiful handwriting, and it was so individual. Nobody I know would be able to identify my handwriting now. It's a shame. I know. I feel the same way. I used to write a diary by hand, and now I do that digitally. It just seems less effort to do it that way. So it's not just a problem. जी, अब ऑडियो रिपीट करने की जरूरत है या सबको अपने आंसर्स मिल गए? चले आंसर चेक करें अपने।
एक गलत है हमारा, फोर्थ वाला। हमने ये लगाया जिसका बी आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ठीक था क्योंकि उसने बताया कि, एक मिनट, पहले एमसीक्यू में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है या कोई कंफ्यूजन है तो वो ज़रूर डिस्कस करे, चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें या अपना माइक खोल के वहां पर बोले। जी सेकंड की जगह। मैम हाँ जी। मैम, ये जो लॉन्ग एमसीक्यूज हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, पहले हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फिर बाद में हम ड्यूरिंग दी ऑडियो व्हेन, जब ऑडियो प्ले हो तब हम इसके ऑप्शन देखें। तो हाँ मैम जी। इसके अंदर फिर हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, हम ऑडियो को सुनेंगे या फिर इसको करेंगे? क्योंकि जब वो ऑडियो प्ले करता है तो वो तो क्वेश्चन का बोल के और डायरेक्ट ऑप्शन बोलना शुरू कर देता है। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? ये आपकी ना पहले मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस की ना तो उसके साथ साथ ये आपको आ जाती है स्किल। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें ना, अगर हम इसके ऑडियो के हिसाब से चलें बगैर उसको पॉज किए, ठीक है, तो वहां पर हमें पूरे, आप अगर आप ऑप्शंस के साथ पढ़ेंगे ना तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पढ़ सकेंगे उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपने वो सारे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं और उसकी स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक एमसीक्यू अगर गुजर गया है तो दूसरा वाला आने वाला है, आपने पहले से हाईलाइट किया होगा। ठीक है, और ऑप्शंस का क्या है, यहाँ पर हमने लैक ऑफ मोटिवेशन देखा, फ्लुएंसी देखा, यहाँ पे फ्लुएंसी का जिक्र हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जैसे वो ऑप्शंस बोल रहा होगा ना, आपको पता होगा कि अब अगर उसने लैपटॉप्स या की बात की, लैपटॉप से पढ़ाने की, तो उसने आगे 2-3 बातें की। ठीक है, तो वो 2-3 बातें जब पहली बात करेगा तो आप अपना ऑप्शन ढूंढ लेंगे कि हाँ यहाँ पर ये वाली बात हो रही है। ठीक है, और फिर जब वो अपने ये सेकंड ओपिनियन देगा तो तब भी आप देख लेंगे कि उसने यहाँ पर ये वाली बात की। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शंस को ही डिस्कस किया जाता है या फिर सिर्फ एक को, लेकिन तीनों ऑप्शंस को वो टच नहीं करता। ठीक है, हमने सारे एमसीक्यूज में देखा कि उसने सिर्फ 2 ऑप्शंस को टच किया है। तो इसलिए ये वाली जो आपकी स्पीड है ना, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगी। और सबसे ज्यादा, अगर मैं पर्सनली कहूँ, प्रैक्टिस के दौरान भी मेरे सबसे ज्यादा जो मार्क्स कम आते थे वो एमसीक्यूज में ही थे। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रिक जो है या इसके अंदर जो हमने टिप्स यूज करनी है वो डिफरेंट है बाकी सारी कह लें क्वेश्चन टाइप से। और ये मुश्किल भी है और ये प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूव हो जाती है। ओके तो मैम। हाँ जी। उसके बाद अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हैं तो आप, हम जरूर ऑडियो के साथ साथ चलकर देखेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ना ये सिर्फ 2-3 एमसीक्यूज तक ही हम पहुंचेंगे तो वो ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें जो 3 है वो छोड़कर फिर से फर्स्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से एक और फायदा इस तरह से करने का ये होता है कि अगर हमारा एक एमसीक्यू का आंसर मिस हो गया ना, तो हम दूसरे एमसीक्यू जब आ रहा है तो हम उसकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक गलत हो गया तो दूसरा गलत नहीं होता, नहीं तो उस तरह अगर आप जैसे आप कह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से मुझे लगता है कि एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। यस मैम, मैंने किया हुआ है उसमें, बिल्कुल एक दो ही पढ़े जाते हैं, बाकी नहीं पढ़े जाते। हाँ जी। तो ये भी ठीक है। ये मैंने किया था, यानी कि पिछली दफ़ा जब मेरी गलती निकली थी तो मैंने यही सोचा था, लेकिन अभी ये जो हमने किया इसके अंदर तो ये भी काफ़ी बड़े थे ऑप्शंस और क्वेश्चन भी, तो काफ़ी डिफिकल्ट था ये वाला। हाँ जी, ये एमसीक्यूज अक्सर डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप पूरे पूरे ऑप्शंस है ना पढ़ा करें, आप स्किमिंग किया करें जैसे हम रीडिंग के अंदर करते हैं, वो वाली टेक्निक आपने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। एक लाइन पढ़ी, उसके अंदर जो आपको मेन वर्ड लगा उसको हाईलाइट किया, दूसरे पे चले गए, उसने फ्लुएंसी की बात की है। इस तरह से स्किमिंग करके
आप अपने हाईलाइट कर लें ऑप्शंस में से, फिर आपको पता भी चल जाता है। ओके मैम। जी, आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई और मसला हो तो आप फिर दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का किसी के अंदर मसला है किसी एमसीक्यू के अंदर? अब 4 हमारा कैसे गलत हुआ था? व्हाट प्रिडिक्शन डज अ मैन मेक अबाउट द फ्यूचर ऑफ हैंड राइटिंग? ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट, I can't see that changing much. Touch typing still isn't taught in most schools, which is a shame. But maybe, ठीक है, that won't be necessary in the future. ओके, यहाँ से मिस्टेक हुई है। मुझे लगा यहाँ पर उसने वुड बोला है लेकिन उसने वॉन्ट बोला था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था ए। लेकिन यहाँ पर अब देखें, वांट था यानी कि वो जरूरी नहीं होगा फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर था विल बी टॉट। ठीक है, तो वो एक वुड और वांट के अंदर मिक्स होने की वजह से ये हमारी मिस्टेक हुई। बिकॉज पीपल विल ऑल्सो बी एबल टू राइट बाई हैंड ऑन डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, वो डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर भी हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। और एनी वे टीचर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हैंड राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर है टीचर्स को पता है हैंड राइटिंग की वैल्यू और उसको बेसिक स्किल ऑफ लाइफ भी कहा गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी गलती, यह मेरी गलती ये हुई कि मैंने आगे फर्दर उसकी बात नहीं सुनी। मैंने सिर्फ ये वाली बात सुनी और मैंने बाकी ऑप्शंस को ढूंढना शुरू कर दिया, यानी कि कोई और ऑप्शन आगे बोलता है लेकिन वो इसी ऑप्शन को आगे फर्दर क्लैरिफाई कर रहा था। ठीक है, पीपल विल डिसलाइक हैंड राइटिंग और डिजिटल वेब डिवाइसेस, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू राइट लर्न टू राइट बाय हैंड। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनको राइटिंग ही सिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि टीचर को उनकी वैल्यू पता है। अब यहाँ पर देखिए ये उन्होंने इसको पैराफ्रेज किया है पूरे के पूरे सेंटेंस को, कोई वर्ड यहाँ पर मिल नहीं रहा। यहाँ पर टीचर्स की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर उसने कहा कि चिल्ड्रन जो हैं उनको पता चलेगा कि चिल्ड्रन जो हैं वो हैंड राइटिंग जरूर सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी कि उसने बोला कि टीचर्स को वैल्यू पता है। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन भी हो सकती है कि क्या पता यहाँ पर उसने वो जो ऑडियो में बोला वो लफ्ज ही ना बोला हो। हमें यहाँ पर एक्चुअली जो मेन आइडिया है उसके सेंटेंस का या उसकी ऑडियो का, उस पर फोकस करना है। उसके बाद देखते हैं, ये भी हमारा ठीक था। स्पेलिंग और पंक्चुएशन की बात हुई थी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी हैंड राइटिंग के बारे में कैसे, यहाँ पर किसी ने चैट बॉक्स में भी बोला हुआ था एम्बेरस्ड बाय द कमेंट्स। ठीक है, पहले मुझे भी यही लगा था कि वो एम्बेरस्ड होंगे क्योंकि उसने कहा कि शेमफुल होता है। यहाँ पर एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्ट सो पर्सनली आई मिस राइटिंग बाय हैंड। ठीक है, आई हार्डली एवर राइट नाउ एंड आई रिमेम्बर माई grandparents had such a beautiful handwriting, it was so individual. Nobody I know would be able to identify my handwriting. No, it's a shame. ठीक है, जब उसने शेम की बात की तो वो embarrassed भी वर्ड आ सकता था और regretful भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन आगे उसकी क्या है, embarrassed by the comments made about it। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि वो कोई उसकी हैंड राइटिंग को समझेगा नहीं। उसने आगे ये नहीं बोला कि कोई उसके बारे में बोलेगा या अपने ओपिनियंस देगा। इस तरह की उसने बात नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि उसको वो समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, और शुरू में उसने यहाँ पर बोला था कि आई मिस राइटिंग बाय हैंड। ठीक है, और मुझे यहाँ से वो लगा कि वो लॉस्ट ऑफ हैबिट, यानी कि वो मिस कर रहा है। मिस किस चीज को किया जाता है? जो कि अब ना रही हो, पहले थी अब नहीं। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। और हमें अभी सेकंड जो टाइप है उसको भी डिस्कस करना है। 10 मिनट है हमारे पास। बी ऑप्शन सिलेक्ट किया था मैंने मिस। हाँ,
जी आप और कौन से वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा शायद फर्स्ट वाले की बात कर रहे थे। ओके चलें अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सेकंड चॉइस वाला कर लें या फिर अगर आप कहते हैं तो हम एक और इसी तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लियर हो जाए। जी प्लीज कुछ सजेस्ट करें। मैम एक और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ज्यादा अच्छे से। चलें ठीक है अब हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है अब इसमें ना हम कोशिश करेंगे कि हमने ऑडियो को स्टॉप नहीं करना और हमने अपने जो आंसर्स हैं उनको जैसे स्ट्रेटजी जो बताई है कि पहले हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को देखेंगे और ऑप्शंस को सॉरी और ऑप्शंस को हम सिर्फ और सिर्फ ऑडियो प्ले के दौरान ही रिव्यू करेंगे। ठीक है तो अब ऑडियो स्टार्ट करते हैं। Part 3. You will hear two theatre studies students, Maya and Finn, discussing their project on theatre programmes. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. So, Finn, I've done as much as I can for our project on theatre programmes. How's your research coming along? Okay, Maya. I didn't know theatre programs are called playbills in the USA till I started looking into the topic. Even though I struggled to find many useful websites, I'm glad we picked this subject. No one else on the course is doing the same as us, although it is one of the research areas of the module convener. That might actually put some people off. I suppose so. Anyway, I hadn't realized there are actually companies specializing in creating theatre programs. Yes, they're quite common nowadays. Contrary to what many people think, theatres don't hire people to do the programmes. In fact, companies buy the rights to publish programmes on the theatre's behalf and then make their money selling advertising space within the programme booklet. It must be easier for theatres to do it that way. Yes. I remember reading something about programs in early British theatre. It said that the cast was always very important. Yeah. Audiences were very familiar with leading actors, and big names would draw huge crowds. But I hadn't realised that if the programme named a famous actor, that's who the public expected to perform. And if that didn't happen, people accused the theatre of breaking their agreement with the audience. They would demand refunds, and if they didn't get them, there were riots. Outrageous! That'd never happen now. No, people are too polite, even when they're disappointed if the star of the show misses a performance. We should definitely include that information about early audiences in our project. I also think it's important to mention that lots of ordinary people at that time were illiterate, so theatre programmes were of limited value in advertising plays. When a company of actors arrived in a town, they'd parade around the streets in their costumes, beating drums and announcing their upcoming performances. Interesting. I couldn't imagine that happening now either. There's also an interesting comparison to make between 18th and 19th century programmes.
Wasn't it in the 19th century that theatre programmes started to resemble programmes today? Yes, and unlike programs from the 18th century, they always used colour. And there was a greater variety of designs. But personally, I think 18th century programmes were superior because they told the theatre goers so many things, including about the actors. And about the writer, the plot, and sometimes the history of the play. That's right. What should we say about theatre programmes in the 20th century? I reckon the most important thing is the dramatic change they underwent during World War II. When the government imposed restrictions on the use of paper. Yeah, but that was only in the UK. In the USA, programmes, or rather playbills, continued to be published in the same format. While here in the UK, programmes became merely a single sheet of paper folded to create 4 pages for text. What I don't really get is that after the war, they didn't go back to being more than one sheet or change in any way for over 25 years. I know there were paper shortages after the war, but only for 5 or 10 years. Strange. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. जी क्या मेरी आवाज़ थ्रू आउट म्यूट थी? जी क्वेश्चन के जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया इसकी ऑडियो आप लोगों को सुनी थी या नहीं सुनी थी? जी आवाज आ रही थी। ओके, मुझे लगा वो थ्रू आउट था। ओके, अब हमने देखा कि हमने नॉन स्टॉप ऑडियो सुनी और हमने अपने आंसर्स को सॉरी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर लिया और इतने में हमारा वो टाइम गुजर गया कि आप अगर ऐसे करें तो अगर आपके पास फिर फर्दर टाइम बच जाए तो आप शुरू से अपने ऑप्शंस पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम आंसर जो ऑप्शंस को भी पढ़ते, लेकिन हमने साथ साथ अपने आंसर्स को स्किम ज़रूर किया, ठीक है। तो सबको अपने आंसर्स मिले या फिर थोड़ा मुश्किल हुआ? चलें अब इनको सबमिट करके देखते हैं कितने ठीक हैं कितने नहीं। माशाल्लाह, ये तो 3 सही है और 3 गलत है हमारे। जी देखते हैं क्या क्या मिस्टेक हुई। पहला हमारा ठीक था, उसने कहा कि कोई और ये नहीं ले रहा, इस वजह से ये ठीक है, हम ये वाला टॉपिक हमारा अच्छा है। माया ने मिस्टेकन बिलीव किया, उसको कहा था, ठीक है, उसने कहा कि वो पे ज़्यादा कर रही हैं। ये देखें, contrary to what people think, theaters don't hire people to do the programs, ठीक है। थिएटर्स पीपल को हायर नहीं करते प्रोग्राम्स करने के लिए। इनफैक्ट कंपनीज बाय द राइट्स टू पब्लिश प्रोग्राम्स ऑन थिएटर्स बिहाफ, ठीक है, बल्कि थिएटर्स पे कंपनीज टू प्रोड्यूस दैट, ठीक है। कंपनीज थिएटर्स को पे करती हैं ताकि वहाँ पर आ सकें, परफॉर्मेंस करने के लिए एक्टर्स आ सकें, ठीक है। Finn was surprised that in early British theatres programs were difficult for audience to obtain। इसके अंदर थोड़ी confusion हुई थी मुझे, लेकिन ऑडियो हमने रिवाइंड नहीं करनी थी। If the program named a famous actor, that's who the public expected to perform, and if that didn't happen,
पीपल एक्यूज द थिएटर ऑफ ब्रेकिंग देयर एग्रीमेंट विद द ऑडियंस। ठीक है, ये मुझे एग्रीमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का आया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया था कि ब्रेकेज ऑफ द एग्रीमेंट या इस तरह का। इस वजह से मैंने ये वाला ऑप्शन चूज नहीं किया, लेकिन मैंने इसको कंसीडर जरूर किया। उसके बाद Maya feels, ठीक है, their project should include an explanation of why companies actors मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही और टाइम भी ख़त्म हो गया। सॉरी मैं म्यूट हो गया था जी। फोर्थ का ये आवाज आप लोगों को? जी फोर। जी ओके, ठीक है। अब इसमें हमारा गलत हुआ था। ठीक है, फोर में क्या था? माया feels their project should include an explanation of why companies of actors। ठीक है, एक्टर्स की जो कंपनी है वो क्यों, ठीक है, करे, क्या काम करे इनमें से, उसने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आई ऑल्सो थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट lots of ordinary people at that time were illiterate, so theater programs were of limited value in advertising plays। ठीक है, और इसमें क्या है, when ठीक है, यहाँ पर ये बात एडवर्टाइजिंग की बात आ गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते, यानी कि प्रमोट नहीं कर सकते। When a company of actors arrive in a town, they parade around the streets in their costumes, beating drums। ठीक है, उसने ये बात की कि वो आउटडोर पे प्ले करते थे, लेकिन क्यों करते थे? ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन उसने दी थी कि अपने जो है ना प्ले को प्रमोट करने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, ये एक्सप्लेनेशन वर्ड के लिहाज से हमारा ये वाली बात आएगी, promoted their own plays वाली। ठीक है, फिन एंड माया both think that compared to 19th century programs। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेटिव आया था, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ये हमें हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात दोनों के ओपिनियन की होनी थी। ठीक है, पहले उन्होंने काफी बात की, दो तीन, ठीक है, कि उसमें कलरफुल वाली बात भी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्टर था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आई थिंक माया ने कहा था कि वो ज्यादा थी, कलरफुल थी, लेकिन फिर ने उसके साथ शायद वो नहीं किया था, एग्री नहीं किया था। तो दोनों ने जो बात सोची, वो थिंक का मतलब यही होता है कि जो दोनों ने एग्री किया जिस बात पर, ठीक है, वो यही था कि इंफॉर्मेटिव वाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक फिर ने जब कहा कि वो वैरायटी ऑफ डिजाइन आ जाते हैं, ठीक है, और दोनों ने बाद में, माया ने कहा और राइटर भी के बारे में और हिस्ट्री के प्ले के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा थी। और एट द लास्ट सिक्स वाला हमारा गलत हुआ। माया डजेंट फुली अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, माया को सही तरह से समझ नहीं आई कि क्यों इन 20th सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात हुई थी? व्हाट आई डोंट रियली गेट इज दैट आफ्टर द वॉर they didn't go back to being more than one sheet or change in any way for over 25 years। यहाँ पर भी मुझे ये मोर देन वन शीट की वजह से मुझे यही लगा कि काफी कम उसके अंदर प्रिंटेड हुआ। ठीक है, लेकिन आगे चेंज इन एनी वे, यहाँ से पता चल जाता है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और डेवलपमेंट फेल हो गई थी। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर हमने आधी बात सुनने की वजह से मैंने ए लगा दिया, और आगे ये चेंज इन द वे ओवर 25 ईयर्स वाली नहीं की, उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था, लाइक जिस तरह ये 40 MCQs होते हैं ना, मुझे
तो अगर इनमें से मतलब अगर आपका 7 बैंड जाते हैं तो फिर आपके कितने मतलब गलत होंगे, तो 7 रहते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यूज बेस होता है ना, ये बहुत मिक्स कर देता है, क्योंकि आप वो टेबल रोज वाला भी कर लेते हैं या जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती है वो भी आप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी कर लें यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर अगर हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था वहाँ पर हमने ये डिस्कस की थी बात कि अगर हमारे एक से दो, एक या फिर एक गलत होगा और बाकी सही होंगे तो 9 आ जाएंगे। इस तरह से 2 से 3 गलतियों की गुंजाइश से हमारे 8.5, 3 से 5 सॉरी 4 से 5 होंगे गलत, तो उसके अंदर हमारे 8 बैंड आ जाता है। और फिर उसी तरह से 6 to 7 के साथ 7.5 आ जाएगा। और अगर हमारी 8 to 7 गलतियां होंगी, ठीक है, तो ये 7 to 8 मिस्टेक्स का हमारे पास मार्जिन होता है, उस लिहाज से हमारे लिसनिंग में 7 बैंड आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये भी अंदाजा लगाएं लेकिन कि सारे के सारे एमसीक्यूज डिफिकल्ट नहीं होते। ये वाला जो पार्ट था डिपेंड करता है कि एमसीक्यूज आपके किस सेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो सबसे आसान होता है। ठीक है, सेकंड तो इस तरह से डिफिकल्टी जो लेवल होता है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और सबसे मुश्किल 4 वाला होता है। तो इस तरह से अगर आपके फर्स्ट पार्ट सेक्शन के अंदर आ जाता है एमसीक्यू तो वो आसान हो गया, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस करने की बजाय आप इस ट्रिक्स पे फोकस करें और अपनी ये मास्टर कर लें अपने एमसीक्यूज को। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा मैम, सॉरी टू बॉदर यू, बट टाइम खत्म हुआ है, हाँ तो जी। आप सेशन को एंड कर दें। जी, हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी अब हमारे डबल चॉइस वाले रह गए हैं, वो अब हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।